Thank you, my Lord. My Lord, Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kaid, Honorable Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, my Lord, Honorable Shri Justice Anand Pathak, Judge, High Court of Madhya Pradesh, and Chairperson, Juvenile Justice Committee, my Lord, Honorable Srimati Justice Anuradha Shukla, Judge, High Court of Madhya Pradesh, and Member, Juvenile Justice Committee, Honorable Judges of the High Court of Madhya Pradesh, Shri Dharmendra Singh, Registrar General, High Court of Madhya Pradesh, Shri Krishnamurthy Mishra, Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Shri Alok Awasthi, Principal District and Sessions Judge Jabalpur, Officers of the Registry, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, dignitaries present in the auditorium, esteemed participants, audience joining us virtually, I, on behalf of the Juvenile Justice Committee, would like to extend a warm welcome to my Lord, Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kaid, Honorable Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, who in spite of his busy schedule has agreed to grace us with his presence today. I welcome our distinguished dignitaries adorning the dais and all the honorable guests, esteemed participants, and all the invitees to this felicitation program, which has been organized by the Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, to recognize the contribution of all the children who have participated in the state consultation on protection of children with disability Samvad, and to give the children a token of appreciation. I now invite the children from the Government School for the Visually Impaired for the welcome song, the Swagatam Geet. सब मिल करते हैं स्वागत आज तुम्हारा, सब मिल करते हैं स्वागत आज तुम्हारा, सब मिल करते हैं। बड़ी अभिलाषा थी आपके आने की, बड़ी अभिलाषा थी आपके आने की, दर्शन पाने की, चार शब्द सुनने की, दर्शन पाने की, चार शब्द सुनने की, अब आनंद हुआ पूरा आज हमारा हो, सब मिल करते हैं स्वागत आज तुम्हारा, सब मिल करते हैं। सूरज किरण पड़े कमल खिलते जल में, सूरज किरण पड़े कमल खिलते जल में, बादल आते ही नाच मयूर जंगल में, बादल आते ही नाच मयूर जंगल में, अब आनंद हुआ पूरा आज हमारा हो, सब मिल करते हैं स्वागत आज तुम्हारा, सब मिल करते हैं, सब मिल करते हैं।
High Court of Madhya Pradesh to kindly welcome and felicitate my Lord Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kaid on Pradesh and Chairperson, Criminal Justice Committee, representing Satni. I now request Shri Alok Awasthi, Principal District and Sessions Judge, Jabalpur, to kindly welcome Honorable Srimati Justice Anuradha Shukla. प्रथम चांस 3 और 4 अगस्त 2024 को इस कंसल्टेशन प्रोग्राम में आया था, जिसमें कि मैंने हम दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और चुनौतियों के ओर प्रकाश डालने का प्रयास किया था, जिसमें कि मुझे लगता है कि मेरे द्वारा बताई हुई चुनौतियाँ का समाधान निकलकर सामने आएगा, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है। मैंने अनेक समस्या बताई थी, रोड में चलने से लेकर नोट में पहचान होना, यदि हमारे हर वह सपने पूरे होंगे, जिसमें कि अनेक दिव्यांगों ने अपनी समस्या बताई थी कि हमें फ्लाइट में उड़ना है, चाहे किसी का भ्रमण को लेकर हो, विद्यालय को लेकर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं चिकित्सा। और मैंने एक बात और कही थी कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास के लिए जो मासिक पेंशन दी जाती है वो अपेक्षाकृत बेहद कम है। तब ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसकी वृद्धि होने की चांस हो चुके हैं। यदि ऐसा होगा तो जो समस्या मैंने बताई थी इनमें सुधार होगा, तो आने वाली पीढ़ी और मेरे जैसे अनेक दृष्टिबाधित साथी आगे अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर पाएंगे और अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, ऑनरेबल जेजेसी कमेटी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ एमपी स्टेट, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं इस प्रोग्राम में आया और मैंने अपनी बातों को रखा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बेटा कंचन। मैं अब खुशी से निवेदन करती हूँ कि वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बहुत बहुत नमस्कार। हमारे टीचर स्पेशली उनको बहुत नमस्कार जिनके कारण हम आज यहाँ हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं बताना चाहूँगी, अगस्त जैसे कि 3 और 4 सब जानते हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू। हमको वो मौका मिला। हमारी डेफ कम्युनिटी में शायद ही ऐसा कोई मौका होगा जहाँ पे हमने इतने अच्छे से अपनी बात रखी, जैसे कि प्रॉब्लम थी हॉस्टल फैसिलिटी, पेपर की टाइमिंग को लेके, बट उन्होंने आप सब लोगों ने उसको सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज दोबारा फेलिटेशन के लिए बुलाया गया हमको, उसके लिए भी बहुत थैंक यू कि एक ऐसा मौका फिर दिया गया कि हमने आप लोगों के बीच में उस सबको थैंक्स करके बोला। उम्मीद है शायद प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व होंगी और इसके लिए हम सब आशा करते हैं। थैंक यू सो मच। We have with us Srimati Varsha Sarogi. She works in the State Bank of India and previous function संवाद में मैम ने एंकरिंग की थी in the cultural evening in the evening, which was very beautiful, and ma'am would like to share her experience with us.
एंकर हूँ, इसलिए बात थोड़ा सा शायराना अंदाज में करूँगी सर, लेकिन दिल से धन्यवाद ही उसका अंतिम अर्थ होगा। नीड में जब पक्षी को, कमज़ोर पक्षी को आपने अक्सर देखा होगा, तो छोटा सा अंडे से वो निकलता है सर, उसे देखकर क्या कभी कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि वो आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा? लेकिन पहुंचता है, क्योंकि उसके जो नीड में उसके रक्षक होते हैं, उसकी माँ, वो उसे एहसास कराते हैं कि अगर तुम ताकत से, अपने हौसले से उड़ना चाहोगे तो ज़रूर उड़ो। हम भी शायद वो कमज़ोर पंख हैं, और हमें इस पूरे वातावरण में अक्सर कई बार बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो बहुत अनोखा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर हम बैसाखियों से चलते हैं, अगर हम सुन नहीं पाते, अगर हम देख नहीं पाते, तो ही सिर्फ हमारे पास चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं है। चुनौतियां सबके सामने आती हैं, हाँ, हमारी चुनौतियों का दर्जा थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन देखिए ना, आप लोग जो इतने सक्षम हैं, हमारे आसपास हैं, और हमें इस मौके को हमें दे रहे हैं। 2 और 3 अगस्त को मैं अक्सर मंच संभाला करती हूँ, लेकिन मेरे लिए यह पहला अनुभव था सर कि मैं एक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े किसी कार्यक्रम में आई, और निश्चित तौर पर जब इस कार्यक्रम में आई और आप सबका जो सम्मान सर, जब हम यहाँ से एंटर हो रहे थे, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी, वो निश्चित रूप से हमें ये एहसास करा रही थी कि हम कितने आवश्यक और कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारी एक एक चीज़ का ध्यान इस कार्यक्रम में रखा गया। खास तौर पर जब यहाँ पर एक विभाग से लोग आए, प्रतिनिधि आए, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें हमसे शेयर की, बहुत सारे हमारे ऐसे अधिकार, हमारे जो हमें सुविधाएं मिलती हैं उसके संबंध में बताया। वो एक हमारे लिए बहुत ही सहायक भी रहा, और यहाँ से, इस मंच से, हमारे बहुत सारे साथियों ने जो व्यवहारिक रूप से जो कार्यक्रम में, जो हमारे जीवनचर्या में जो परेशानियाँ जो सामना करते हैं, उसको यहाँ पर व्यक्त किया, और हर किसी ने यहाँ पे मंच से, हमारे बहुत ही परम आदरणीय अतिथियों ने सुना भी, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी उनमें जो सुधार है, जो हो सकता है, वो हमें परिणाम दिखाई भी देंगे। तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जो आपने सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ये जो कमज़ोर पंख हैं, इन्हें हमेशा आप हौसले से भरते रहेंगे, ऐसी आकांक्षा। सर, मैं बार बार इस मंच तक आना चाहूँगी। अभी मैं जब बात सुन रही थी तो ये 2 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारे सपनों को हौसलों के पंख लगाते रहिए, यूं ही आप भी मुस्कुराएं और हमें भी मुस्कुराते रहिए। खुद को साबित करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, खुद को साबित करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हमें इस मंच पर प्यार से, सम्मान से बुलाते रहिए, हम आ जाएंगे बुलाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले अवसर पर आपको फिर देखना चाहेंगे, हम फिर आपके सामने अपनी प्रतिभाएं दिखाना चाहेंगे, इसी आकांक्षा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, ma'am. The Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, had organized Samvad, a state-level consultation program on the protection of rights of children with disabilities, on the 3rd and 4th of August 2024 in the Madhya Pradesh State Judicial Academy. The main objectives of the consultation was to sensitize the participants and the stakeholders about the vulnerabilities and the rights and entitlements of the children with disabilities. Another object was to understand the roles and responsibilities of various agencies and the departments, and to identify and commit to actions in addressing the psychosocial vulnerabilities, as well as ensuring effective service delivery for the children with various forms of disabilities. Many children with disabilities and children from the childcare institutions had participated in the consultation. Today's program has been organized to felicitate and thank these children. As a token of our gratitude and appreciation, the children are being given certificates and gifts or school bags with books, with sports items, equipments, music instruments and clothes.
May I now request my Lord Honorable Shri Chief Justice Suresh Kumar Kair, Chief Justice High Court of Madhya Pradesh, to felicitate the children and representatives of the government school for visually impaired children by giving them a gift as a token of our gratitude. Children. Impaired children by giving them a gift as a token of our appreciation. To felicitate the children and representatives of the government school for children with intellectual disability by giving them a gift as a token of our appreciation. From Justice Tankha Memorial School for Special Children, we have Sonia with her sister. I request the Lordship to kindly present a token of appreciation to Sonia's sister. Both of them were present throughout the Samvad, and the entire program was conveyed in sign language by them. Their hard work cannot go unnoticed. I request Honorable Lordship to kindly present them also with a token of gratitude. Achha, please ask them. Last year. And I dinner with Thank you so much. माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैर साहब, माननीय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, सिस्टर अनुराधा शुक्ला, मेंबर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, अन्य ब्रदर जजेस, रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह जी, डायरेक्टर अकेडमी लक्ष्मी ईश्वर जी, सेक्रेटरी सारिक साहब, हुसैन साहब, डिस्ट्रिक्ट जज अवस्थी जी, अकेडमी के अन्य ऑफिसर्स, फैकल्टीज, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सेक्रेटरी अनिल मलिक साहब, रजिस्ट्रार आईटी समरेश सिंह जी, जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी से जुड़े रहे, अन्य रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी
रजिस्ट्रार एडमिन हर्ष बहरावत, संदीप शाह, अन्य ऑफिसर्स और जिन लोगों के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, सारे पार्टिसिपेंट्स बच्चे जो कि एक पूल ऑफ टैलेंट है। उस दिन उन बच्चों की आकांक्षाएं, अभिव्यक्ति और परफॉर्मेंस तीनों हम लोगों ने देखा। 3 और 4 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ उसमें, क्योंकि सोचा यही गया था, हर कार्यक्रम में की नोट एड्रेस होता है कि कार्यक्रम की थीम क्या है। हमारी जुवेनाइल जस्टिस टीम जो थी, जिसमें यूनिसेफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बच्चे, उन लोगों ने, मिस्टर मलिक, मिस्टर समरेश, उन सब ने जो कंसीव किया, जो सोचा, जो इम्प्लीमेंट किया, उससे वो जो थीम थी या जो की नोट था वो सबसे इफेक्टिव रहा। उन बच्चों को एक मौका मिला मंच पे कि क्या समस्याएं हैं या क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, ये जानने का मौका। शायद हम सब लोग ने उस दिन कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन या थॉट एडिशन करा अपने सोच में, जब हमने पहली बार उन बच्चों को मंच पे अपनी बात कहते देखा। सबसे मुझे लगता है किसी भी कार्यक्रम का सबसे इफेक्टिव की नोट एड्रेस अगर रहा है तो वो रहा। गांधी जी का एक सिद्धांत था ट्रस्टीशिप का। गांधी जी ये कहते थे कि जो समाज के जो समर्थ वर्ग है, साधन संपन्न वर्ग है, उसके पास जो उसकी असेट्स है या उसके पास जो उसकी पूंजी है, वो पूंजी एक्चुअल में एज ओनर नहीं है, मालिक के तौर पे नहीं है। उसको ये समझना चाहिए वो ट्रस्ट के तौर पे है उसके पास, वो ट्रस्टी है उसका। ट्रस्टी और ओनर में अंतर होता है। तो ट्रस्टी है जो उसको आगे किसी विशेष पर्पस के लिए पास ऑन करना है, दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस सिद्धांत के हिसाब से हम सब का कुछ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम उस अपनी पूंजी को, अपनी वैचारिक पूंजी को, अपनी तदेन पूंजी को, अपनी शासकीय पूंजी को कुछ इन लोगों की बेहतरी के लिए करें, उस सोच के साथ था। उन लोगों के साथ इन बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगा और इनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उस दिन इन लोगों ने दिन भर परफॉर्म, अपनी बातें बताई और साथ में शाम को जो उन्होंने कल्चरल इवनिंग थी, वो सारी इन लोगों ने जो परफॉर्म किया है वो अद्भुत था। एक ऐसा लग रहा था कि जो उसमें कहीं डिस्टिंक्शन नहीं था, कहीं भेद नहीं था कि इनमें, बल्कि ये स्पेशली गिफ्टेड लग रहे थे कि जबरदस्त टैलेंट जिनका दिख रहा था। कुछ बच्चों ने ये मांग रखी थी कि उनको हेलीकॉप्टर में घूमना है, तो जब उन्होंने ये मांग रखी उसके बाद हमने हमारे जो सेक्रेटरी हैं जे कमेटी के मलिक साहब, उनको मैंने निर्देश दिए थे। हेलीकॉप्टर में तो बैठाना संभव इसलिए नहीं कि हेलीकॉप्टर वो स्पेशल अलग जगहों पे ही रहता है, लेकिन हमने उनकी जो हवाई जहाज में बैठाने का व्यवस्था कर रहे हैं और वो प्रोसेस में है। और शायद कुछ दिन में वो सारे, पहले दो बच्चों का, 4 बच्चों की अभिव्यक्ति थी, लेकिन हम लोग ने डिसाइड किया कि जो सारे बच्चे हैं उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको हवाई जहाज में एक बार बैठने का मौका मिलेगा और शीघ्र ही वो सब बच्चे जो हैं वो हवाई जहाज में घूमेंगे। एक दिन कुछ बच्चों ने कहा कि हमको वैष्णो देवी जाना है, कोई तीर्थ घूमने जाना है, कई उनकी आकांक्षाएं वो थी। तो उस पर भी हमने जे कमेटी ने डिस्कस किया है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तीर्थ यात्रा जो है, उनकी जो इच्छा है जहाँ जाने की, वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस से मिलकर करी जाए। एक जो चीज़ है, ये इन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त जो
कलात्मक अभिव्यक्ति है। और मैं कृष्णमूर्ति मिश्रा जी से अनुरोध करूँगा कि ये जो इस तरह की पेंटिंग्स इन बच्चों से अगर ये संभव हो तो कुछ और बनवाएं, और हमारी ये जो अकेडमी है इसकी गैलरी में लगवाएं, ताकि उनके नाम के साथ में, ताकि उस बच्चे को यह एहसास रहे कि उसका नाम एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में उसके परफॉर्मेंस के कारण है, और दूसरे लोग भी प्रेरणा लें कि ऐसी पेंटिंग्स बनाने की हम भी इच्छा रखें, हम भी सामर्थ्य डेवलप करें। जो कुछ इश्यूज इन्होंने फ्लैग करे थे, कुछ पेंशन के, कुछ जो उनको अमाउंट मिलने के रेगुलर, तो वो मलिक साहब को बताया है। आप उसको जो 23 तारीख वाली अपनी जो मीटिंग है स्टेट की, उसमें भी उसको प्रमुखता से रखेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि जो जो इश्यूज उस समय आए थे सामने, उसमें जो कमेटी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो जो बेहतर कर सकती है, और कम से कम शासन के सामने जोरदारी से ये बात तो रखेंगे ही कि उनको ये उनके दायित्व हैं जो उनको करना है। कुछ रिजॉल्व भी हो रहे हैं इश्यूज और कुछ रिजॉल्व होंगे। उसी समय जब की नोट एड्रेस में मैंने एक बात कही थी जो मैंने आशा व्यक्त की थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक संभावना जो है वो एक यथार्थ में तब्दील हो सकती है, और वो संभावना थी AI इनेबल्ड ऐप जो साइन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करे। मैंने उस दिन कहा था कि आशा व्यक्त की थी कि कोई एक ऐसा ऐप बनना चाहिए कि जैसे ये साइन लैंग्वेज अक्षर बता रहे हैं, तो वो साइन लैंग्वेज कई बार डेफ एंड डम लोगों को, कई बार जब वो पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स, कलेक्ट्रेट, पुलिस स्टेशन, तो उनको बस स्टैंड, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है अपनी बात कहने में। तो अगर वो एक AI इनेबल्ड ऐप ऐसा बने कि जिसको या तो हर सार्वजनिक जगहों पे स्क्रीन ऐसा लगा दिया जाए, और या मोबाइल में भी रहे कि जब कोई ऑफिसर के सामने या किसी पुलिस वाले के सामने ये अपनी साइन लैंग्वेज को बोले, तो वो ऐप पढ़े उसको और फिर तुरंत इंटरप्रेट करे कि ये साइन लैंग्वेज का आशय क्या है। उस दिशा में एक केस चल रहा है मेरे पास, वीरेंद्र सिंह सिकरवा, एक MCRC जिसमें डायरेक्शन मैटर्स में कई मैं उसमें डायरेक्शन देता जा रहा हूँ कुछ अलग क्रिमिनल लॉ की फील्ड में ऐप बनाने के लिए। तो उसमें मैंने जो NIC टीम है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर टीम, उनको ये सजेशन दिया था अगस्त में। तो 3 अगस्त को मैं यहाँ से गया और फिर 8 अगस्त को मैंने ऑर्डर उसमें करा है, और उसमें मैंने डायरेक्शन दिया है कि AI इनेबल्ड ऐप ऐसा बनाया जाए। और उन्होंने NIC ने अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले केस लगा था फिर से, तो उन्होंने मुझे सूचित किया है कि उन्होंने वहाँ के जो सेंट्रल कमिश्नर सोशल जस्टिस हैं मिस्टर राजेश अग्रवाल, उनसे ये बात करी है, एंड दे आर इन प्रोसेस। वो उसकी मॉडलिटीज देख रहे हैं कि किस तरह से इसको करा जा सके। तो आशा करते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी ने इसको अगर आगे बढ़ाया, तो एक अगर ऐसा ऐप आ जाएगा जिससे ये साइन लैंग्वेज इंटरप्रेट होने लगेगी, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है PWD का, पर्सन विद डिसेबिलिटी का, जो इस तरह से है, तो उन लोगों के लिए ये एक सुविधा बढ़ सकती है। इसमें हम लोग कोशिश करने में लगे हुए हैं। मैं अंत में हमारी JJ जो टीम थी उसने जो मेहनत करी, हमारी सिस्टर जो मैडम अनुराधा शुक्ला थी, ब्रदर गुरपाल सिंह अहलुवालिया जो थे जस्टिस, इन लोगों का सहयोग जो रहा, टीम मेंबर्स का रहा, यूनिसेफ के जो बच्चे ये सब थे, इन लोगों ने जो काम किया, और अकेडमी ने और सालसा ने, इन सब लोगों ने जो सहयोग दिया, उस सहयोग के कारण, और जो पार्टिसिपेंट्स आए अलग अलग विद्यालयों से, मेमोरियल से, तनखा मेमोरियल से और रंगमंच विवेचना से, इन सब लोगों का जो सहयोग रहा, अकेडमी के ऑफिसर्स का, डायरेक्टर्स का, रिसोर्स पर्सन्स का, जो अलग अलग जगहों से आए पूरे इंडिया से, चाहे वो निमहैंस हो, चाहे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलग अलग प्रोफेसर्स हो, इन सब के सहयोग से एक जो बहुत सफलतापूर्वक जो कार्यक्रम हुआ, तो मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ।
उन सबका अभिनंदन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये एक शुरुआत रहे, यानी जो हमने पिछले कुछ सालों से जो हम कारवा बढ़ाया है आगे, ये आगे भी चलता रहे और हम नए नए जो क्षितिज हैं उनको छूने का कोशिश करें। और अंत में मैं एक विराट गोरखपुरी के शेर से अपनी बात कहूँगा। उस दिन मैंने लास्ट में कही थी ये, और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ ताकि हम सब भी उस कॉन्सेप्ट से सेंसिटाइज हों या अपने जीवन में कुछ ऐसा एम रखें। विराट गोरखपुरी कहते हैं कि पाल ले एक रोग नादा इस सफ़र के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे ज़िंदगी कटती नहीं। तो आप लोग भी एक रोग पाल लें, एक हॉबी पाल लें, एक इस तरह कुछ अच्छे काम करने की। और मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, my lord, for your kind and compassionate words. May I now request Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kaur, Honorable Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, to kindly share his enlightening words and bless the gathering. Justice Anand Pathak, Justice Anuradha Shukla, Justice Alwalia, my colleagues, judicial officers, the participants, children, their parents, their relatives, their teachers and guide, guru, ladies and gentlemen. आपकी जो परफॉर्मेंस जो अपने कल्चरल प्रोग्राम में, पेंटिंग में, यहाँ बोल के एड्रेस करके इस गैदरिंग को, मैं ये कह सकता हूँ मैडम के माध्यम से कि आपके पंख कमजोर नहीं है। पंख कमजोर उसके होते हैं जिसको सब कुछ मिला है और फिर भी उड़ान न कर पाए। तो आपके पंख बहुत मजबूत है, आप मजबूती से उनको यूज़ कीजिए, जितना हो सके उतना उड़िए, कोई आपको रोकने वाला नहीं, खुद का जज्बा होना चाहिए जो है। आपने बहुत अच्छी खूबसूरत पेंटिंग्स ली, परफॉर्म किया, और इन सब के पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो जूनियर जस्टिस कमेटी के जो मेंबर, चेयरमैन, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बुलाया नहीं जा सकता। मैं थोड़ा सा अपने यूनिवर्सिटीज़ के डेज में चला गया जब आपको देखते हैं। एक लड़का एमफिल म्यूज़िक में कर रहा था, अब उसको मुझे याद नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि ये 1985 की बात है। मैं उस टाइम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी होता स्टूडेंट यूनियन का। तो वहाँ क्या हुआ, एक दिन मेरा एक क्लासमेट विजय अगलखा, जो हमारा टॉपर भी रहा, क्लाइंट था, विजय अगलखा और मैं, हम डिनर करके और बाहर कैंटीन के दूध पी रहे थे। वो जो लड़का, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो जो एमफिल कर रहा था म्यूजिक में, वो आता है शाम को, और कैंटीन थी वहाँ पे नरहरि हॉस्टल नाम से कुरुक्षेत्र में था जहाँ हम रहते थे। वहाँ कैंटीन में आया और आते ही बोला, जो कैंटीन का ओनर था उसका नाम था अंग्रेज सिंह, सरदार जी था। वो आते ही बोला, ब्लाइंड था वो लड़का भी, तो उसने कहा, अंग्रेज फटाफट खाना दे, मुझे भूख लगी है। उसने कहा कि खाना तो खत्म हो गया, तुम लेट आए हो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं खा भी लिया, तो कुछ भूख नहीं हुई। और वो बात हमने सुनी और वो कह के ऊपर चला गया। मैं और विजय दलखा फ्लाइट का मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम दोनों मैस में गए। हमने देखा मैस में खाना बचा है, तो उन्होंने कहा यस, मैंने कहीं थाली लेके उसके रूम में ड्रॉप लेके आया। पीछे पीछे हम भी साथ में गए। उसने कहा कि लो
खाना भिजवाया मैस से। वो कहता मैस में तो मैं खाना खाता ही नहीं। और क्यों नहीं मैस में खाना खाता था? मैस कोऑपरेटिव होके भी उसको महंगी लगती थी। मैं इतने गरीब परिवार से था, तो इसलिए वो जो कैंटीन में सर्वेंट्स का खाना बनता था, वो जो भी बनता था वो खा के अपना गुजारा। जब उसने मना किया कि नहीं मैं उसका नहीं खाना खाता, तो हम साथ साथ चले कि ये खाना हम लेके आए हैं और खाना खा लिया। नहीं कहता मुझे भूख नहीं। मैंने कहा हमने सब सुन लिया आपकी बात। आपने कहा था अंग्रेज फटाफट खाना दे, भूख लगी है। जब उसने कहा खाना नहीं है, तो आपने कहा कि नहीं मुझे भूख नहीं, उसका क्या है, आप खाना खा लिए। उस दिन के बाद से जब तक वो हॉस्टल में रहा, वो हमने अपने अकाउंट से उसका मैस में खाना खिलाया। हमने कहा कैंटीन में जाने की जरूरत नहीं, आप मैस में खा लीजिए। उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि जो बच्चे, और मैं ये भी कहूँ वेरी फ्यू, उनको छोड़ के सब बच्चे ज़्यादातर गरीब परिवारों के हैं। मेरी असेसमेंट है, जितना मैंने देखा है। जो मेरे साथ जो लड़का था विजय लड़का, जो भी प्रिंसिपल रिटायर हुआ गुड़गांव पीजी गर्ल कॉलेज से, वो अच्छे घर से था। बल्कि कई बार जब मेरे पैसे खत्म हो जाते थे, वो सुधार लेता था, फिर बाद में दे देता था। बहुत अच्छे घर से था। और उसकी हाइट कोई 5, 10, 11 के करीब थी, अच्छी हाइट। और वो 7th तक साइटेड था। 7th में ऑल ऑफ ए सडन वन आफ्टर अनदर विदिन 1 मंथ उनकी दोनों आंखें चली गई। उसके बाद से भी आप ये देखिए, जो हमारा क्लासमेट था वो हमारा वो टॉपर था। तो मैं जो बताना चाहता हूँ, हम सब होते हुए दोनों आंखें लेके, हम टॉपर नहीं थे, टॉपर वो था जिसके पास दोनों आंखें नहीं थी। तो मैं जो कहता हूँ कि जो दिखाई देता है या अंधा है, वो कौन है? जो दिमाग से अंधा हो, जो दिल से अंधा हो। आंखों से तो अंधा नहीं, रोशनी तो आप वैसे बखेर सकते हो जो आपने बखेरी है और जो परफॉर्म कर रहे हो। एक हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम था, 70 mm की उस पर स्क्रीन भी थी। हम बीच बीच में मूवी मंगवाते थे और मूवी दिखाते थे सब स्टूडेंट्स को। उसमें शहर के भी अलाउड थे जो नॉन स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनके टिकट लगता था। उस टिकट से जो पैसे इकट्ठा करते थे उसको फिल्म सोसाइटी बोलते थे। और मैं जॉइंट सेक्रेटरी था स्टूडेंट यूनियन में। फिल्म सोसाइटी का जो इंचार्ज भी था मैंने उसमें से ये अरेंज किया कि जितने बच्चे हैं जिसकी जरूरत है, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, वो उनको उस सोसाइटी से वजीफा मिलेगा। और हमने वहाँ से वजीफा उनको 10,000 रुपये सालाना सबका उसमें तो हमने निकाल दिया सब बच्चों का। हमारे यहाँ दिल्ली में खासकर एक एडवोकेट है, SK रूंगटा, लाइट है, और वो सीनियर एडवोकेट, सीनियर डेजिग्नेटेड। और सीनियर डेजिग्नेट कौन करता है आपकी जानकारी के लिए? फुल कोर्ट करके पूरे कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, वो उसको डेजिग्नेट करते हैं। तो वो सीनियर एडवोकेट है, बहुत अच्छा एडवोकेट है। एक वहाँ पे है मनोज सिन्हा, वो भी नया लड़का है, 30-35 की उम्र होगी उसकी, वो भी अच्छा परफॉर्म करना है। एक लड़का और आया, 3 लड़के वहाँ पे ब्राइट है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी फील्ड हो, म्यूजिक का हो जैसे परफॉर्मेंस का है, आपकी पेंटिंग का हो, टीचर का हो, स्टूडेंट का हो, फिल्मों में कोई जो आपको कलाकृति दिखानी है वो हो, या किसी भी कोई किसी को नहीं रोक सकता। वो आपने जज्बा होना चाहिए। और जज्बे के लिए मैं ये कहता हूँ सोसाइटी अगर उनको सपोर्ट करे, एनकरेज करे, तो उनमें जज्बा बहुत है, वो दिखाएंगे। और जितना एनकरेज करेंगे वो उतना ही आसमान को छुएंगे।
आज मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो उन पार्टिसिपेंट्स को मैं एज ए टोकन 5,000 ईच मैं अपने पर्सनल अकाउंट से मैं दूंगा। जैसे पाठक को पहुँच जाएगा वो सब यहाँ से जस्टिस पाठक ने जैसे बताया, जिनकी कोई डिमांड है जो गवर्नमेंट से हो सकता है, हम बहुत पुरजोर कोशिश करेंगे और जो भी हो सकता है आपके लिए वो पूरा हम अपनी बात रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी बात को गवर्नमेंट ना नहीं करेगी, वो मानेगी। इन्हीं के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिए। आपको कोई फील्ड नहीं छोड़ना कि जिसमें आप नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, my Lord, for this benevolent act of yours. It was such a touching and inspiring incident that you shared with us. Thank you once again for your guiding and motivating words. Arriving towards the end of the program calls for an expression of profound and deep gratitude towards our esteemed guests and this esteemed gathering. Therefore, I now request Shri Anil Kumar, Secretary, Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, to kindly tender the vote of thanks. माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेश कुमार के मुख्य न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक सर, माननीय अध्यक्ष किशोर न्याय समिति, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला मैम, माननीय सदस्य किशोर न्याय समिति, उपस्थित समस्त माननीय न्यायमूर्तिगण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, आदरणीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, आदरणीय सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, आदरणीय निदेशक महोदय मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सम्मानित समस्त रजिस्ट्री अधिकारी और अकादमी के समस्त सम्मानित सदस्य, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मानित अतिरिक्त सचिव एवं अन्य स्टाफ, आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय बच्चों, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, सुप्रभात और आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। मैं अनिल कुमार, सचिव किशोर न्याय समिति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, आज के इस विशेष अवसर पर संवाद कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करते हुए बच्चों की सहभागिता को लेकर आयोजित इस सम्मान समारोह में पर उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम किशोर न्याय समिति एवं स्वयं अपनी ओर से मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेश कुमार के मुख्य न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को आभार ज्ञापित करता हूं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को नई ऊंचाई प्रदान करी और जिनके प्रेरक विचार और मार्गदर्शन हम सभी के लिए अमूल्य धरोहर। मैं माननीय श्रीमती आनंद पाठक, अध्यक्ष किशोर न्याय समिति को सम्मान समारोह की शोभा बढ़ाने, बच्चों का उत्साह बढ़ाने और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के पवित्र उद्देश्यों को पूरा करने के माननीय के सतत मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय के आशीर्वाद की छत्र छाया में काम करते हुए समय समय पर हमें शौर्य विधि, सोशल ऑडिट, सामाजिक सुरक्षा, स्टैच्यूटरी ग्रिड एवं टाइम बाउंड जैसी अनेक नवीन प्रगतिशील अवधारणा के विकास को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जो हमारी योजनाओं और प्रयास को अल्प समय में ही वास्तविकता में बदलने का मार्ग प्रशस्त करती है। और यह सब हमारे लिए गौरव की बात है कि माननीय किशोर न्याय समिति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त नवीन अवधारणा में रुचि दिखाते हुए हमें शौर्य विधि, सोशल ऑडिट और स्टैच्यूटरी ग्रिड की अवधारणा को माननीय समिति से साझा करने का अवसर प्रदान किया गया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के आशीर्वाद, गरिमामयी उपस्थिति और उनके मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला में माननीय सदस्य किशोर न्याय समिति का भी माननीय की गरिमामयी उपस्थिति, बच्चों को आशीर्वाद देने और समिति को उनके द्वारा प्रदत्त निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं सभागार में उपस्थित समस्त माननीय न्यायमूर्तिगण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को समान समारोह की शोभा बढ़ाने और बच्चों को आशीर्वाद देने, आज हमारे साथ रहने के लिए और अपना बहुमूल्य समय
देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय साहब, आदरणीय सदस्य सचिव मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, आदरणीय निदेशक मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सम्मानित रजिस्ट्री अधिकारी, अकादमी के सम्मानित सदस्य और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव को आवश्यक सभी सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए और आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। विशेष रूप से मैं बच्चों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने अद्भुत प्रयास से इस कार्यक्रम को संजीवनी प्रदान की। उपस्थित शिक्षक और अभिभावकों का धन्यवाद करना भी उतना महत्वपूर्ण है जिन्होंने बच्चों को प्रेरित और मार्गदर्शन दिया। आपकी मेहनत और सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। आप सभी को कोटि धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी उपयुक्त व्यवस्था करने में निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए कुमारी निधि मैडम, श्री अमित सिंह जी, श्री टाडा सर, नमिता मैम एवं अकादमी के अन्य सभी न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों का अपनी ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं सम्मान समारोह की समस्त योजना एवं उक्त योजना के सुगमतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए श्री समरेश सिंह रजिस्ट्रार IT, सचिवालय के सदस्य वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ श्री गुरमुख लांबा, करुणा, श्री शिवेंद्र, दीपक के अथक एवं सतत प्रयासों के लिए भी आप सभी का अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। आज सभागार में उपस्थित श्री अक्षय, खुशी, वर्षा मैम, सम्मानित प्रतिभागियों, सम्मानित अतिथियों, मीडिया कर्मी और सेवा प्रदाताओं को भी हमारे अनुरोध को स्वीकार करने और आज हमारे साथ रहने के लिए आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. I now seek permission of Honorable Dais to open the program. Thank you, my lord. I request our esteemed guests to kindly proceed for entry. अच्छे सद्भाव की बात कह रहा हूँ मैं। तो जस्टिस BK द्विवेदी साहब इस माहौल में, और उनको जब ये लगा, जस्टिस BK द्विवेदी साहब 50,000 रुपये अपनी तरफ से बच्चों को इसके लिए उनको धन्यवाद।